Hello everyone, this is Richa Singh here. Welcome back to the video once again. So, as we are covering chapter number 2 of geography, which is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources, in this series, in our previous video we have discussed about soil and its profile. So let me tell you once again what is soil profile. Basically, soil profile can be defined as the layers of soil. As you all know that soil is just not a simple layer or the crust. It consists of various layers, each layer having different components of minerals and nutrients. जो मिट्टी होती है वो सिर्फ एक सिंगल परत नहीं होती, उसमें बहुत सी परतें होती हैं, बहुत अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं और हर एक लेयर्स में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो अलग होते हैं, रॉक्स अलग होते हैं एंड उनका जो टोटल कॉम्पोजिशन होता है वो भी अलग अलग होता है. किसी भी जगह की ज़मीन को या मिट्टी को हम 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, 4 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे टॉप की जो लेयर होती है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द टॉप सॉइल. उस टॉप सॉइल में ह्यूमस यानी आर्द्रता और नमी पाई जाती है. अलॉन्ग विद दैट उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं. प्लांट की जो रूट्स होती हैं उसी में जाकर फिर वो ग्रो करती हैं. And after that is the second layer which consists of subsoil, which is having sand, silt and clay. This layer also helps in the growth of plant. And then third layer is of weathered rock and the fourth one is parent rock. So weathered rock and parent rock are the hard layers which is consist of only the rock and pebbles. And they do not contain any fine particles of sand, silt and clay. इसमें कोई भी fine particles नहीं पाए जाते, सिर्फ बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर इस layer में पाए जाते हैं. So this is what all about soil profile. Now we have to discuss in this video the factors of soil formation. Means the factors which affect the soil of any place. सॉइल किस जगह की कैसी होगी, किस तरीके की सॉइल का फॉर्मेशन किन जगहों पर होगा, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं. सो बेसिकली द सॉइल फॉर्मेशन आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पैरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स. सो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जगह की जो मृदा, मिट्टी या सॉइल है उसका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, उसके जो बेसिक मेन फीचर्स डेवलप होते हैं वो उसके पैरेंट रॉक से डेवलप होते हैं और वहाँ के क्लाइमेट यानी जलवायु से. पैरेंट रॉक का मतलब होता है मूल चट्टानें. ये वो चट्टानें होती हैं जिनसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है. Along with that there are so many other factors like topography, then role of organic material and the time taken for the composition of soil formation. And all these factors are differ from place to place, which means कि हर जगह के पैरेंट रॉक सेम नहीं हो सकते, हर जगह का क्लाइमेट सेम नहीं हो सकता, and for that reason soil also differs from place to place just because of these factors. So now let's have a look at the first factor which is parent rock. As I have already told you, parent rock are these are refers to the original rock from which something else was formed. ये वो मेन रॉक होती हैं, वो मूल चट्टानें होती हैं जिनके टूटने से, आपस में घिसने से और पाउडर में कन्वर्ट होने के बाद ही किसी सॉइल का फॉर्मेशन होता है. दे नॉर्मली हैज़ अ लार्ज इन्फ्लुएंस ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल. इनका जो प्रभाव होता है वो मिट्टी पर सबसे ज़्यादा होता है. कोई भी मिट्टी किस प्रकार की होगी ये बेसिकली उसके पेरेंट रॉक पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है. लाइक फॉर एग्जांपल पेरेंट रॉक इज़ समथिंग विच विल डिटरमाइंस द कलर, जो मिट्टी के कलर को डिटरमाइन करेगा, उसका टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल्स एंड कंटेंट्स, परमेबिलिटी. ऑल दीज फैक्टर्स आर डिफाइंड बाय पेरेंट रॉक. As you have already learned about different kinds of rock like igneous rock, sedimentary rocks and then metamorphic rocks. So these are some different kinds of rocks. So out of these rocks, due to excessive heat and pressure, they breaks down into small stones and pebbles, and with the passage of time they convert into the fine particles of sand, silt and clay.
ये वही रॉक्स होती हैं जिन पे बाहर के हीट और प्रेशर के वजह से दरार पड़ती है, ये आपस में रगड़ खाकर टूटने लगती हैं एंड ऑल दीज प्रोसेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स। इन सारे प्रोसेसेस के बाद ये बड़ी चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं और जैसे जैसे समय बीतता है ये और फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती चली जाती हैं एंड दैट्स हाउ दे फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। सो इट इज़ बेसिकली द पेरेंट रॉक। ये पेरेंट रॉक ही डिसाइड करेगा कि सॉइल का कलर, उसका टेक्सचर, उसके मिनरल्स और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरीके की होंगी। जिस तरीके का जिस प्रकार का पेरेंट रॉक होगा उसी से सिमिलर प्रॉपर्टीज़ उससे बनी हुई सॉइल में ट्रांसफ़र होती हैं, कैरी फॉरवर्ड होती हैं। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ रिलीफ। रिलीफ स्थलाकृति, किसी भी स्थल की जो आकृति होती है, वहाँ का जो रंग रूप आकार होता है या उभड़ी हुई जो नक्काशी होती है किसी स्थान की, वो भी सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करती हैं। लाइक अल्टीट्यूड एंड द स्लोप दे डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। अल्टीट्यूड एंड स्लोप मीन्स किसी भी जगह की जो ऊंचाई और वहाँ का जो ढलान होता है ये भी मिट्टी के जमाव को निर्धारित करते हैं। जहाँ पे जिस प्रकार का स्लोप और अल्टीट्यूड होगा उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे सॉइल का एक्यूमुलेशन होता है। अगर स्लोप ज़्यादा है, ढलान ज़्यादा है, तो सॉइल कम एक्यूमुलेट हो पाती है और इफ़ एनी पीस ऑफ लैंड इज़ हैविंग फ्लैट स्लोप, वहाँ की ढलान एकदम समतल है, फ्लैट है, तो वहाँ पे सॉइल का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा एंड दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ थिक लेयर ऑफ सॉइल एट दैट प्लेस। Third factor which affects the formation of soil is flora, fauna and the microorganism. All these things also affect the formation of soil. Flora, fauna and microorganism. Flora means the plants, fauna means the animals and the microorganism means those tiny living organisms which are present in the soil. Because all these factors affect the rate of humus formation. Now the question arises that what is humus? Humus हम कह सकते हैं खाद या मिट्टी होती है जिसमें सड़े गले पत्ते, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। A substance made from dead leaves and plants that you put into the ground to help plants growth. So this is what we called humus, यानी कि जब लैंड में पेड़ पौधे एंड इवन जो डेथ एंड डिकेइंग बॉडी होती है एनिमल्स की, वो भी जब धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ के वजह से सड़ने और गलने लगती है, डिकम्पोज हो जाती है, देन इट फाइनली कन्वर्ट्स इनटू सॉइल। वो फिर मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है, वो उन्हीं पेरेंट रॉक के फाइन पार्टिकल्स में जाकर मिल जाती है एंड विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, जिसको कि हम खाद मिट्टी भी कहते हैं। सो किसी भी जगह का जो फ्लोरा, फना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अवेलेबिलिटी होगी वो ये डिसाइड करेगी दैट द सॉइल विल हैव what quantity of humus in it. If the availability of flora and fauna and microorganism would be in good number, then the soil would have good quality of humus, and on the other hand, in the absence of good quantity of flora, fauna and microorganism, the soil will lack of humus, as it is the humus that improve the health of soil, nitrogen being the most important. So availability of nitrogen is all because of the availability of flora, fauna and microorganisms, because these things helps to generate good quality of humus in the soil. इन चीज़ों के वजह से सॉइल में अच्छा खासा ह्यूमस डेवलप हो पाता है, जिसके वजह से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। नाउ द फोर्थ फैक्टर इज़ टाइम. Time is also responsible in the formation of soil. As I have already told you that it takes thousands of years to form 1 centimeter of soil. मिट्टी की 1 सेंटीमीटर की परत बनने में कई हज़ार साल का वक्त लगता है। सो सॉइल प्रोफाइल जो होगी, सॉइल की जो डिफरेंट लेयर्स होंगी वो कितनी थिक होंगी ये टाइम पर डिपेंड करेगा, विच मीन्स दैट if you check the layer of a newly formed soil, that layer or that soil profile would be thin in nature. इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर हम हाल ही में बने हुए मिट्टी के प्रोफाइल या लेयर्स को चेक करेंगे तो वो लेयर्स काफ़ी पतली होंगी,
वहीं अगर हम किसी ऐसी जगह की मिट्टी के लेयर्स को चेक करें जो बहुत पुरानी है, तो उसकी जो लेयर्स होंगी वो थिक होंगी. सो इट इज़ बेसिकली just because of time factor. Time would develop a thick layer of soil, and in the lack of time the layer would be thin in nature. कम समय में बनी हुई मिट्टी की लेयर्स जो होंगी, प्रोफाइल्स पतली होंगी, और जो मिट्टी ज़्यादा समय लेकर बनी होगी या बहुत पुरानी होगी उसकी लेयर्स थिक होंगी. Now last but the most, one of the most important we can say factor is climate. Climate यानी कि जलवायु, which includes terms like temperature, rainfall influence, rate of weathering and humus formation. So all these factor also affects the formation of soil. किसी भी जगह का तापमान कैसा है, रेनफॉल की दर वहाँ पर कैसी है, वेदरिंग का रेट क्या है. वेदरिंग मीन्स जो रॉक्स हैं उनको ब्रेक होने में कितना समय लगता है, किस रेट पे वो टूट रहे हैं, डिके हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं और एक्सपोज्ड हो रहे हैं. ये फैक्टर्स क्लाइमेट की वजह से डिसाइड होते हैं एंड अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. एंड नॉट ओनली दिस, even the rate of temperature also affects the rate of weathering as well as the rate of pressure on the rocks, which results ultimately in the formation of soil. किसी भी जगह का जो तापमान रहेगा उसका घटना या बढ़ना, ये भी रॉक्स की वेदरिंग को या उसकी रेट को डिसाइड करेगा. टेम्परेचर हाई या लो होगा तो उसके अकॉर्डिंगली प्रेशर में भी चेंजेस आते हैं, एंड अल्टीमेटली दैट चेंजेस इन प्रेशर वुड अफेक्ट द रेट ऑफ वेदरिंग. ये प्रेशर में आया हुआ बदलाव किसी भी पत्थर या पहाड़ के टूटने की जो दर है उस पर भी इफ़ेक्ट डालता है. एंड नॉट ओनली दिस, जो रेनफॉल है वो भी सॉइल फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करता है. हाई रेनफॉल, लो रेनफॉल, these factors affects in the formation of soil. along with this, humus formation, किसी भी जगह की मिट्टी में ह्यूमस का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, कितना हो रहा है, ये भी क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है. जस्ट बिकॉज इन अ हार्श क्लाइमेट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसके वजह से वो फ्लोरा और फना को, जो सड़े गले पेड़ पौधे और एनिमल्स की बॉडी होती है, उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से फिर ह्यूमस फॉर्मेशन सही ढंग से हो नहीं पाता. सो अ राइट काइंड ऑफ टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड फॉर दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव एंड टू डू द टास्क ऑफ डिकम्पोजिशन. इनको एक पर्याप्त तापमान की आवश्यकता होती है सो दैट ये सर्वाइव कर सकें, जीवित रह सकें, और जो भी सड़े गले पेड़ पौधे या पत्तियां हैं या एनिमल्स की बॉडी है उनको खाकर गलाकर उसको मिट्टी में मिला सकें. So this is the ultimate factors which affect the formation of soil of any place, and these are all very important, and they results in the formation of either the thick layer or the thin layer of soil. If all these factors combine together in a good proportion, that will result in the formation of a thick layer of soil, and on the other hand, in the absence of any of these factors, the profile or the layer of the soil would be thin in nature. Now let's move to another topic, which is about degradation of soil and conservation method, because as you all know that soil is also one of a resource, and resource due to the excessive or overuse gets degrade or depleted. So for that reason, firstly let's understand the degradation of soil and then the measures that can be adopted for the conservation of soil, which is one of the most important resource. So soil erosion and depletion, these are the major threats to soil as a resource. soil का erode हो जाना और डिप्लीट हो जाना. इरोड होने का मतलब होता है जब उसकी टॉप लेयर जो होती है वो कट कर अलग हो जाती है, वो रिमूव हो जाती है बाय द एक्शन ऑफ ईदर विंड और वाटर. This is what we called as soil erosion, which means the removal of the top layer of soil by the action of either wind or water is called as soil erosion, जिसमें हवा या पानी के बहाव से जब मिट्टी की ऊपर की परत जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ह्यूमस पाया जाता है, वो रिमूव हो जाती है, बहकर या उड़कर चली जाती है. दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज soil erosion.
And children, soil erosion is one of the threats to the soil. Soil के लिए कई खतरों में से एक खतरा इरोड हो जाने का होता है. Second is depletion. Depletion means when the quality of soil gets depleted, which means that when soil loses its minerals and nutrients, this is what we called as depletion. जब मिट्टी में से जितने इसेंशियल मिनरल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएं, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाए, तो उसे डिप्लीशन कहा जाता है. बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल. दीज आर टू फैक्टर्स विच मीन्स ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल. हमारी एक्टिविटीज़, हमारी जो गतिविधियां हैं वो भी, और कुछ प्राकृतिक गतिविधियां भी हैं जो सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं, गिरा देते हैं. Factors which lead to soil degradation are like deforestation, वनों की कटाई, इसके वजह से भी सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती है. ओवरग्रेजिंग, हद से ज़्यादा चरने के वजह से जो कैटल्स होते हैं जब ग्राउंड की ओवरग्रेजिंग कर लेते हैं, उसके वजह से भी सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है. ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, हम जब खेती करते हैं तो उसमें कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं या फिर केमिकल से बने हुए खाद का इस्तेमाल करते हैं. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स एंड ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ दीज केमिकल्स, मिट्टी में केमिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है और उसकी जो खुद की नेचुरल क्वालिटीज़ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं. Along with these रेन वॉश, एक्सेसिव रेन वॉश, जब कभी भारी वर्षा होती है तो उसके पानी के बहाव से भी मिट्टी बहकर चली जाती है और मिट्टी की क्वालिटी और उसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं. एंड फैक्टर्स लाइक लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन डिग्रेडिंग द सॉइल. बाढ़ या ज़मीन का खिसक जाना, जिसको भूस्खलन हम कहते हैं, ये फैक्टर्स भी सॉइल के डिग्रेडेशन में एक मेजर रोल प्ले करते हैं. सो एज वी नो दैट सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, सो इट्स आवर ड्यूटी एज वेल एज देयर इज़ अ नीड टू कंजर्व दिस रिसोर्स. ये हमारी ड्यूटी भी है और उसके साथ साथ इस रिसोर्स को कंजर्व करने की, इसका संरक्षण करने की ज़रूरत भी है. अदरवाइज़ इसकी क्वालिटी जैसे जैसे डिग्रेड होगी, हमारी लाइफ की क्वालिटी भी एक टाइम आने के बाद डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी. So now there are some methods of soil conservation listed here, like which consist of mulching, contour barriers, rock dam, terrace farming, intercropping, contour plogging and shelter belts. So these are some methods of soil conservation that can be adopted to conserve soil, that can be used to retain the quality of soil and प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम गेटिंग इरोडेड एंड डिप्लीटेड. सॉइल को बचाया जा सकता है इन मेथड्स को फॉलो करके. दैट वी विल लर्न वन आफ्टर अनदर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, विच इज़ मल्चिंग. The bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. So mulching is basically a protective covering spread or left on the ground to reduce evaporation, maintain even soil temperature, prevent erosion, control weeds and enrich the soil or keep the fruit clean. This is what we called as mulching. As you can see from the picture itself, mulching एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ग्राउंड्स पर जो प्लांट्स लगाए जाते हैं उनके बीच में या तो जो स्ट्रॉ होते हैं, एज यू कैन सी द स्ट्रॉ इन द पिक्चर, इस तरह के स्ट्रॉज या ऑर्गेनिक मैटर्स को छोड़ दिया जाता है एज इट इज़ इनके रूट्स के पास और प्लांट्स के अगल बगल इर्द गिर्द, ताकि ये जो एक्सेस मॉइस्चर है, नमी है, उसको सोख करके एब्जॉर्ब करके रखे रहें और मिट्टी को सूखने से बचा सके. अलॉन्ग विद दैट ये सॉइल में टेम्परेचर को भी रिटेन करके बैलेंस करके रखते हैं, मिट्टी को बहने से बचाते हैं, इरोड होने से बचाते हैं एंड जो छोटे वीड्स, जो छोटी छोटी घास उगाती हैं, उनको भी ग्रो करने से रोकते हैं. सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, फ्रूट्स को भी क्लीन रखने में मदद करते हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दे हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर. मिट्टी में नमी, आर्द्रता, इसको बनाए रखते हैं जिसकी वजह से मिट्टी सूखती नहीं है और ना तो ये इरोड होती है
और ना ही डिप्लीशन इसमें होता है। सो जो बेयर ग्राउंड्स होते हैं मीन्स द ग्राउंड्स बिटवीन प्लांट्स, एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स के बीच की जो जगह, जो ब्लैंक, जो खाली रहती है, वहाँ पर इन स्ट्रॉज को स्प्रेड किया जाता है। एंड दीज स्ट्रॉज आर नथिंग बट द प्लांट इटसेल्फ विच गेट कम्प्लीटली ड्राइड अप, जो पूरी तरह से सूख चुके होते हैं उनको एज अ स्ट्रॉ यूज़ किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट मेथड दैट कैन बी यूज्ड to prevent soil erosion and depletion and to conserve soil is contour barriers. Contour barrier means when stones, grass, soil are used to build barriers along contours. जब कभी भी पत्थरों का, घास और मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है फील्ड्स के साइड में कॉन्टोरिंग करने के लिए या एक छोटी वॉल बनाने के लिए, या हम इसे मेड़ कहते हैं, मेड़ बनाने के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है, सो दिस इज़ वॉट वी कॉल्ड एज कॉन्टोर बैरियर्स। एक तरीके के बैरियर्स या रोधक बनाए जाते हैं। ट्रेंचेज आर मेड अप इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर, और इन बैरियर्स के ठीक सामने ट्रेंचेस बनाए जाते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द एरो, दिस लो लाइंग एरिया इज़ कॉल्ड एज ट्रेंचेस। इसमें सारा पानी आकर कलेक्ट हो जाता है एंड दिस इज़ हाउ दे प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम गेटिंग इरोडेड। आपका जो फील्ड है उसके आपने चारों ओर स्टोन्स, ग्रास और सॉइल का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा बैरियर बना दिया, एक बाउंड्री छोटी सी बना दी वहाँ पर, और उसके अंदर की तरफ आपने एक लो लाइंग एरिया, एक ट्रेंच जैसा बना दिया। दिस इज़, यू कैन सी इट फ्रॉम द एरो, दिस एरिया, द लो लाइंग एरिया इज़ द ट्रेंच। यहाँ पर जब पानी फ्लो होकर आएगा तो इसमें कलेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से फिर ये आगे बहता नहीं और अपने साथ ना तो मिट्टी को फ्लो करके बहुत दूर तक ले जाता है। दिस इज़ हाउ पीपल प्रोटेक्ट्स देयर सॉइल, especially the top soil, from getting eroded and depleted. As these barriers slow down the water movement and reduce its erosive force. ये barriers जो बने होते हैं ये पानी के बहाव को कम कर देते हैं, और जब flow यानी कि बहाव कम हो जाता है तो जो top soil होती है वो बहकर चली नहीं जाती, वो वहीं पर अपनी जगह hold रहती है. That helps in the conservation of soil. Now the next method is rock dams. In this method, rocks are piled up to slow down the flow of water, and this prevents gullies and further soil loss. As you can see from the picture, there are different sizes of rocks. These are settled in a same order, building a structure like that of a dam. ये सारे जो पत्थर हैं एक साथ रखकर एक छोटे से बांध के रूप में बनाए गए हैं। इन पत्थरों के बने हुए जो बांध होते हैं दे रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ वाटर, ये पानी के फ्लो को कम कर देते हैं या घटा देते हैं, जिसके वजह से फिर मिट्टी ज़्यादा दूर तक बहकर नहीं जा पाती और सॉइल इरोड होने से बच जाती है। दीज रॉक डैम्स आर क्वाइट कॉमन इन फील्ड्स टू प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम गेटिंग इरोडेड। इस तरीके से बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करके हम अपने फील्ड्स में एक डैम जैसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, एक बांध जैसा बना लेते हैं, जिसके वजह से किसी भी तरह का जो सरफेस रन ऑफ है या रेन वॉश है, कहीं से भी पानी बहकर आया या बारिश का जो बहुत ज़्यादा पानी होता है उसके वजह से टॉप सॉइल रिमूव नहीं हो पाती। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रॉक डैम्स, इन रॉक डैम्स की सहायता से। नाउ द नेक्स्ट मेथड दैट कैन बी यूज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन इज़ टेरेस फार्मिंग. Terrace farming is basically a method of farming that has been practiced in northern India since quite some time. Terrace farming refers to the act of constructing steps or terraces to conduct farming activities on mountain slopes. Each level is made up of different crops being grown. So basically टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स या टेरेसेस का फॉर्मेशन होता है। एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, यहाँ पे एक स्टेप्स जैसे सीढ़ियाँ होती हैं उस तरह की चौड़ी सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, या टेरेसेस यानी कि ढलान या छत जैसा फॉर्मेशन किया जाता है। These are made on the steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops. So basically these kind of farming activities are practiced in the hilly areas and the mountainous region.
जो पहाड़ी इलाके होते हैं, ऊंचे इलाके होते हैं पर्वत वाले, जहाँ पर फ्लैट लैंड्स अवेलेबल नहीं होती, तो वहाँ पे मिट्टी को या वहाँ के माउंटेन्स को काट काट के इस तरह के चौड़े ब्रॉड स्टेप्स या सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, सो दैट इट कैन प्रोवाइड अ फ्लैट लैंड फॉर द क्रॉप्स टू ग्रो, जिसके वजह से क्रॉप्स को एक फ्लैट लैंड मिल सके प्रॉपर तरीके से ग्रो करने के लिए। एंड दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन, बिकॉज अगर कोई भी पीस ऑफ लैंड अगर स्लोप उसका ज़्यादा होगा, अगर उसकी ढलान ज़्यादा होगी, तो वहाँ से जब कभी भी रेन वाटर या किसी भी तरीके का आप इरिगेशन वाटर भी अगर डालोगे, तो वो पानी डायरेक्टली ऊपर से फ्लो करता हुआ नीचे की तरफ चला आएगा अलॉन्ग विद द लेयर ऑफ टॉप सॉइल, वो अपने साथ टॉप सॉइल को भी बहाता हुआ ऊपर से नीचे की ओर चला आएगा। दिस इज़ वॉट वी कॉल्ड एज सरफेस रन ऑफ। तो अगर हम स्लोप्स पर खेती करेंगे तो सारा सरफेस रन ऑफ होकर टॉप सॉइल ख़त्म हो जाती है। एंड इन ऑर्डर टू रिड्यूस दीज सरफेस रन ऑफ, इस तरह के सरफेस रन ऑफ से बचने के लिए इस तरह के ब्रॉड स्टेप्स या सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, या टेरेस कह सकते हैं इनको। इस तरह के टेरेसेस का फॉर्मेशन किया जाता है ताकि जब कभी भी पानी का फ्लो हो फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, वो फ्लो स्लो डाउन हो जाए। एट द सेम टाइम जो वो अपने साथ सॉइल इरोड करके ले आएगा, वो नेक्स्ट लेयर में क्रॉप्स के थ्रू एब्जॉर्व कर ली जाएंगी और वो वेस्ट नहीं जाएंगी। दिस इज़ हाउ पीपल ऑफ हिली एरियाज डू टेरेस फार्मिंग टू प्रिवेंट सॉइल डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन। इस तरीके से पहाड़ पर खेती की जाती है, जिससे मिट्टी के कटाव को और मिट्टी की क्वालिटी को घटने से बचाया जा सकता है। Now let's have a look to another method that can be used to conserve soil. This is intercropping. Intercropping means different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from the rain wash. Basically, we can say that intercropping is a multiple cropping practice, and that involves growing two or more crops in proximity. In other words, we can say that intercropping is the cultivation of two or more crops simultaneously on the same field. This is what we call intercropping. इसका मतलब जब आप एक ही फील्ड पर एक साथ अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, उसको इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, यू कैन सी डिफरेंट कलर्स ऑफ लीफ। दीज डिफरेंट कलर्स ऑफ लीव्स आर displaying different types of crops. So here different types of crops are grown at the same time at the same place on the same field. This is what we call intercropping, जिसमें एक ही piece of land में अलग अलग rows बनाकर, अलग अलग columns बनाकर अलग अलग क्रॉप्स को एक ही वक्त पर लगाया जाता है। एंड इंटरक्रॉपिंग के बहुत से एडवांटेजेस होते हैं, दैट्स वाई पीपल जनरली फॉलो दिस मेथड फॉर सॉइल कंजर्वेशन। एज क्रॉप ईल्ड्स इंक्रीज विथ इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप ईल्ड जो होती है, जो उपज होती है खेतों से, वो इंटरक्रॉपिंग की वजह से बढ़ जाती है ड्यू टू हायर ग्रोथ रेट, रिडक्शन ऑफ वीड्स, पेस्ट एंड डिजीजेस एंड मोर इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। पेस्ट एंड डिजीजेज डैमेज इन इंटरक्रॉपिंग इज़ लेस देन प्योर क्रॉपिंग। जब कभी आप एक सिंगल क्रॉप्स को ग्रो करेंगे तो उसमें आपके जो पेस्ट और डिजीजेस होते हैं वो ज़्यादा ग्रो होने के चांसेस होते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू डू दीज काइंड्स ऑफ क्रॉपिंग विच इज़ कॉल्ड एज इंटरक्रॉपिंग, विच इन्वॉल्व्स मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स टू बी ग्रोन साइमल्टेनियसली, आपके डैमेज होने के चांसेस, क्रॉप्स के पेस्ट के बढ़ने के चांसेस, यानी कीड़े मकोड़े जो होते हैं जो अक्सर फसलों को ख़राब कर देते हैं, उनके बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऑल्सो वीड्स विल बी अंडर कंट्रोल। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप। आपने वीड्स के बारे में पढ़ा होगा, ये वो छोटे पौधे होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो आपके मेन क्रॉप्स के साथ में ग्रो करते हैं। तो अलॉन्ग विद फॉलोइंग दिस मेथड आप वीड्स को भी कंट्रोल कर सकते हो, and along with that you can even improve the quality of soil, as due to the availability of different types of crops to be grown at the same time, these crops helps in enhancing the quality of soil also. ये soil की quality को enhance करने में एक major role play करती है। Now let's move to another method of soil conservation, which is contour plogging. Plogging parallel to the contours of a hill slope
to form a natural barrier for water to flow down the slope. This is what we called as contour plogging. Contour means the outline, रूपरेखा, जो बाहरी आउटलाइन या रूपरेखा होती है. तो जब कभी भी आप प्लॉगिंग करते हैं पैरेलल टू द कॉन्टोर्स ऑफ अ हिल स्लोप, कोई भी जो हिल है, पहाड़ी है, उसकी जो ढलान होती है, उसकी जो स्लोप होती है, जब उसकी आउटलाइन पर आप प्लॉगिंग करके वहाँ पर खेती करते हैं और वहाँ एक नेचुरल बैरियर की तरह बना देते हैं, सो दैट जब वाटर का फ्लो हो तो वो बैरियर्स उसको रोक सकें. विच मीन्स लाइक आपने एक पहाड़ी इलाके पर खेती करना शुरू किया, उसका जो हिल स्लोप है, उसकी जो ढलान है, उस ढलान के बाहरी आउटलाइन पर आपने प्लॉगिंग की और वहाँ पे क्रॉप्स को लगा दिया. अब जब उस हिल स्लोप पे वाटरफॉल होगा तो वाटरफॉल होते हुए जब ऊपर से पानी अपने साथ मिट्टी को बहाकर नीचे की ओर ले आएगा, तो इस आउटलाइन पर लगे हुए जो प्लांट्स होंगे या जो क्रॉप्स होंगे वो मिट्टी के साथ आया हुआ सारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व कर लेंगे, सारा जो उसमें मिनरल्स है वो एब्जॉर्व कर लेंगे. इस तरीके से ये जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं ये वेस्ट नहीं जाते और सॉइल का आगे जो फ्लो होता है वो भी रुक जाता है. एंड जस्ट लाइक टेरेस फार्मिंग, दिस कॉन्टोर प्लॉगिंग इज़ वेरी फेमस इन द हिली एरियाज़. प्लॉगिंग का मतलब होता है जुताई करना. जब आप प्लॉग्स का इस्तेमाल करके फील्ड की जो मिट्टी होती है उसको टर्न करते हो, उसके लेयर्स को टर्न करते हो अप एंड डाउन, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड प्लॉगिंग. क्रॉप्स को ग्रो करने से पहले प्लॉगिंग की जाती है, विच इज़ द प्राइमरी स्टेप बिफोर सोइंग एनी काइंड ऑफ क्रॉप. Now the last method in this series of soil conservation is shelter belts. Especially in the coastal and dry regions, rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. As you can see on the screen, there is a field which is full of a crop, but along with this crop there is a row of plants that can be seen at the outside or the outline of this field. These rows of plants are called as the shelter belts. These are grown along with the main crops to protect the soil of that area from getting eroded. अक्सर मेन क्रॉप्स के साथ फील्ड के आउटर बाउंड्रीज़ पर इस तरीके से बड़े पेड़ों को लगा दिया जाता है, इस ट्रीज़ को लगाते हैं, सो दैट विंड और वाटर का जो फ्लो है वो फ्लो अपने साथ सॉइल को इरोड कर न लेकर चला जाए. ये प्रैक्टिसेस हमारे रीजन्स में भी अक्सर देखने को मिलते हैं. दीज आर वेरी ऑफन कैन बी सीन इन आर नियर बाई विलेजेस एंड द फील्ड्स, एंड अलॉन्ग विद दैट दीज आर वेरी कॉमन इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन. तटवर्ती इलाके जो होते हैं, ड्राई रीजन्स जो होते हैं, जहाँ पर विंड मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, अक्सर इस तरह के शेल्टर बेल्ट्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं, सो दैट दीज बेल्ट्स कैन स्लो डाउन द फ्लो ऑफ विंड. ये जो ट्रीज़ होते हैं विच इज़ एक्टिंग एज द बेल्ट, जो एक बेल्ट की तरह काम कर रहे हैं, वो तेज़ चलने वाली जो हवाएं होती हैं, फास्ट मूविंग एयर विच इज़ कॉल्ड एज विंड, उसके फ्लो को स्लो डाउन कर देते हैं, विच फर्दर रिजल्ट्स इन द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, जिससे सॉइल का कंजर्वेशन होता है, सॉइल इरोजन और डिप्लीशन से बचा जा सकता है. So children, these were some common methods or steps that can be adopted by each and everyone to protect the soil from getting eroded and depleted. Now in the next video, we will discuss about the next resource, which is water. Till then, do take care of yourself. Bye everyone. Thank you so much.